नमो लोये सौहरिहन्ताणं नमो लोये सौहृदानं नमो लोये सौभागिर्यानं नमो लोये सौज्यायानं नमो लोये सौत्रिकावती सावनं ओंकारमिन्दु संयुक्त नित्यं जयन्ति योगिनः कामदं मोक्षदं चैव ओंकाराय नमो नमः मङ्गलं भगवान् विष्णु मङ्गलं रूपमोहि मङ्गलं कुञ्कुण्डारि विजेन्द्रमोसुमङ्गलं नमः समरिसाराय स्वानुभूत्या चकास्ते स्वभावाय भवाय सर्वः विभाव निरुद्ध निराकार। કળશ અમૃત ભગવાન અમૃતચંદ્રાચાર્ય રચિત કળશ અમૃતનું સ્વાધ્યાય આપણે કરી રહ્યા છીએ. એમાં 28મા કળશનો સ્વાધ્યાય આપણે શરૂ કર્યો છે. 28મો કળશ અને એનો જયચંદજી ચાવડાએ જે ભાવાર્થ કર્યો છે તે આપણે કર્યો છે. અને તે પછીથી પંડિત રાજમલજીએ આ કળશ ઉપર જે ટીકા લખી છે એ પણ આપણે વાંચનમાં લીધી છે. અને આની ઉપર પૂજ્ય ગુરુદેવ કાંજી સ્વામીએ જે વિસ્તાર કર્યો છે એનો કેટલોક ભાગ આપણે કર્યો છે. આજે આગળ એ લઈએ છીએ. સહેજ પુનરાવર્તન કરીએ જેથી અનુસંધાન પ્રાપ્ત થાય. કળશના ભાવ એવા છે કે અમૃતચંદ્રાચાર્ય ભગવાન કહે છે કે આ બે પ્રકારે સ્તુતિ જ્યારે કહેવામાં આવી, નિશ્ચય સ્તુતિ અને વ્યવહાર સ્તુતિ કહેવામાં આવી, અને એ નિશ્ચય સ્તુતિ દ્વારા તીર્થંકર ભગવાનની કેવળી પરમાત્માની એ નિશ્ચય સ્તુતિ દ્વારા આત્માના શુદ્ધ સ્વરૂપની જ્યારે વાત કરવામાં આવી અને એમાં ભેદ જ્ઞાનની વાત કરવામાં આવી તો પછી એવું ભેદ જ્ઞાન કેમ ન થાય? નિશ્ચય વ્યવહારના વિભાગ વડે આત્માનો અને પરનો અત્યંત ભેદ બતાવ્યો છે. તેને જાણીને એવો કોણ પુરુષ છે કે જેને ભેદ જ્ઞાન ન થાય? જો એને સમ્યકપણે વિચારણામાં લે, પોતાના સ્વરૂપનું લક્ષ્ય કરીને એને વિચારણામાં લે તો એને અવશ્ય ભેદ જ્ઞાન થાય એમ અમૃતચંદ્રાચાર્ય ભગવાન કહે છે કે થાય જ. કારણ કે જ્યારે જ્ઞાન પોતાના સ્વરૂપથી પોતે પોતાનું સ્વરૂપ જાણે ત્યારે અવશ્ય તે જ્ઞાન પોતાના આત્માને પરથી ભિન્ન જ જણાવે છે. આત્માનો જ્ઞાન સ્વભાવ છે અને એ જ્ઞાન સ્વભાવ એ કોઈ ઉપર અવલંબિત નથી, કોઈ દ્વારા પ્રભાવિત થતો નથી. આત્માનો જ્ઞાન સ્વભાવ જે છે એ જ્ઞાન સ્વભાવ કોઈથી પ્રભાવિત થતો નથી, એટલે એ પક્ષપાત રહિત છે અને એ પરમ સત્ય છે. એ સ્વને પ્રકાશનારો છે. પરનું પ્રકાશક કોણ? એ તો વ્યવહાર માત્ર છે. એવો સ્વને પ્રકાશનાર એવો એનો જ્ઞાન સ્વભાવ છે. તો એ જ્ઞાન સ્વભાવમાં એને એવું જ જ્ઞાન વર્તે છે કે બધાથી જુદો ભિન્ન જ્ઞાન આનંદ સ્વરૂપ ભગવાન છે. એટલે એવું ભેદ જ્ઞાન થાય જ. આચાર્ય ભગવાન એમ કહે છે કે અવશ્ય તે જ્ઞાન પોતાના આત્માને પરથી ભિન્ન જ જણાવે છે. અને પોતાને પરથી ભિન્ન જ્યારે એ જાણે છે, એમાં એકાગ્રતા કરીને જાણે છે તો એને સ્વાનુભૂતિ થાય છે. બહુ સરસ વાત અહીંયા લેવામાં આવી છે. જયચંદજી ચાવડાએ એમાં એક લીટી વધારાની ઉમેરી છે અહીંયા કે કોઈ દીર્ઘ સંસારી હોય, એવો જ કોઈ અહીં કોઈ દીર્ઘ સંસારી જ હોય તો તેની કાંઈ વાત નથી, પરંતુ જીવ માત્રને એ એવું ભેદ જ્ઞાન કરે છે તો ભેદ જ્ઞાનમાં એને જગતથી જુદો પોતે ભગવાન આત્મા એને અનુભવમાં આવ્યા વિના રહે નહીં. તો આ વાત કરવામાં આવી છે અહીંયા. ખંડાન્વય સહિત અર્થની અંદર આપણે કેટલોક ભાગ કર્યો છે અને એમાં મૂળ વાત આપણે એ લીધી કે 3 લોકમાં એવો કયો જીવ છે કે જેને બોધ અર્થાત જ્ઞાન શક્તિ સ્વરૂપના પ્રત્યક્ષ અનુભવશીલપણે
આજ પણ પરિણમનશીલ ન થાય, એટલે કે બધાને થાય. અને એમાં એમ કહ્યું રાજમલજીએ કે જીવ કર્મનું ભિન્નપણું અતિશય પ્રગટ કરીને બતાવ્યું છે. જીવ અને કર્મ એ બેનું ભિન્નપણું અહીંયા તો અતિશય પ્રગટ કરીને બતાવ્યું છે. સાંભળતા એટલે કે બહુ વિસ્તારથી આ વસ્તુને સ્પષ્ટ સમજાવવામાં આવી છે કે જીવ અને કર્મ જુદા, અને કર્મ કહેતા કર્મ પણ જુદા, કર્મના ઉદય પણ જુદા, કર્મના ઉદયના નિમિત્તે જીવને વિભાવ ભાવ થાય છે એ પણ જુદા, નો કર્મ પણ જુદા. એમાં બધું આવી ગયું. એ બધું અજીવ છે, જળ છે, અને એનાથી ચેતન એવો ભગવાન આત્મા ભિન્ન છે. એટલે કે જે સાંભળતા જે જીવને જ્ઞાન ઉપજતું નથી તેને અહીંયા ઠપકો દીધો છે કે ભાઈ તું શું કરી રહ્યો, તને કેમ એનું ભાન નથી થતું, આટલું સ્પષ્ટ દેખાય છે ને તારું લક્ષ્ય ક્યાં છે? કયા પ્રકારે ભેદ દ્વારા સમજાવતા? તો કે છે કે એ ભેદ દ્વારા આ રીતે સમજાવવામાં આવ્યું છે કે ચેતન દ્રવ્ય અને કર્મપિંડના એકત્વપણાને, એનું એકત્વપણું જે છે એને જુદું કર્યું છે. એ પ્રકારે ભેદ સમજાવવામાં આવ્યો છે. કેમ કે બે વચ્ચે બીજી રીતે કોઈ એકતા હતી નહીં. એકત્વપણું તો માન્યતામાં હતું. એટલે કે જીવ અને કર્મ અનાદિ બંધ પર્યાય રૂપ એક પિંડ છે એવી જે માન્યતા હતી એ જ્ઞાન દ્વારા એ માન્યતા ટળી જાય છે. અને એ જીનેશ્વર ભગવાનની વાણી દ્વારા જે જ્ઞાન પ્રકાશ થયો છે સર્વજ્ઞ દ્વારા, તો એ દ્વારા પ્રત્યક્ષપણે એ જાણવામાં આવ્યું કે જીવ આદિ સકળ દ્રવ્યોના ગુણ પર્યાયોને જેમણે સર્વજ્ઞ પરમાત્માએ જોયા છે, જાણ્યા છે, પ્રત્યક્ષ જાણ્યા છે, તો એમાં જે જ્ઞાન આવ્યું છે એ જ્ઞાન દ્વારા પહેલા એને આ બધાને જુદા પાડ્યા, અને પછી એવો જ અનુભવ કરે છે. એટલે કહે છે કે જીનેશ્વર ભગવાનની વાણીમાંથી એ વાતનો સ્વીકાર કરી અને દ્રવ્યાર્થિક અને પર્યાર્થિક રૂપ પક્ષપાતના વિભાગ દ્વારા, ભેદ નિરૂપણ દ્વારા ભિન્ન સ્વરૂપ વસ્તુને સાધવાથી એ જુદું પડી ગયું. એટલે કે જે કર્મ અને કર્મના નિમિત્તે થતા ભાવો, નો કર્મ, આ બધું જે હતું એ બધું પર્યાયમાં હતું. એટલે પર્યાર્થિક નહીંથી એ વસ્તુ એવી હતી, અને દ્રવ્યાર્થિક નહીંથી તો પોતે ત્રિકાળ શુદ્ધ હતો. અને એવી રીતે જ્યારે એવું જ્ઞાન થયું એટલે એ ભિન્ન એને જણાય છે. એટલે એ દ્વારા એ રીતે ભેદ નિરૂપણ, ભિન્ન સ્વરૂપ વસ્તુને સાધવી, એ રીતે સાધ્યું. જેમણે એ રીતે સાધના કરી એણે એવું ભેદ જ્ઞાન કર્યું છે. એટલે અહીંયા કહે છે કે એ રીતે વસ્તુને સાધવી, અને તેના વડે અતિશય નિસંદેહપણે ઉચ્છેદવામાં આવે છે. ઉચ્છેદવામાં આવે છે એટલે શેનો ઉચ્છેદ કરવામાં આવ્યો? આ મિથ્યા માન્યતા છે એનો ઉચ્છેદ કરી નાખવામાં આવ્યો. અને એમ કરતા જે ઢંકાયેલો નિધિ એ પ્રગટ થાય છે, એ પ્રગટ કરવામાં આવે છે. એટલે કે પોતાનું જીવ દ્રવ્ય પ્રગટ થાય છે, એ પ્રગટ જ છે. એ ઢંકાયું હતું એ તો મિથ્યા માન્યતાને કારણે ઢંકાયેલું હતું, પરંતુ એ પ્રગટ જ છે. કર્મ સંયોગથી ઢંકાયેલું હોવાથી એ જાણે કે પોતે છે જ નહીં એમ મરણને પ્રાપ્ત થઈ રહ્યું હતું. અને એ ભ્રાંતિ પરમ ગુરુ શ્રી તીર્થંકરનો ઉપદેશ સાંભળતા, એનો સ્વીકાર કરતા અને પછી એવો પુરુષાર્થ કરતા એ ટળી જાય છે. એટલે કર્મ સંયોગથી ભિન્ન શુદ્ધ જીવ સ્વરૂપનો અનુભવ થાય છે. અને આવો અનુભવ એ સમ્યક્ત્વ છે. અને એ અનુભવને માટે કહે છે કે એ અનુભવ એ કેવો છે, એમાં શું છે, તે બોધ શું છે? તો કે છે કે જ્ઞાન સ્વભાવનો ઉત્કર્ષ, અતિશય સમર્થપણું, જ્ઞાન સ્વભાવનું અતિશય સમર્થપણું, અને એનાથી એ પૂજ્ય છે, એ જ એનું મહાત્મ્ય છે, એ જ એનું સત્વ છે, એ જ એનું સર્વસ્વ છે. એ સ્વરસ રભસ એટલે જ્ઞાન સ્વભાવનો ઉત્કર્ષ, અતિશય સમર્થપણું, તેનાથી પૂજ્ય છે. અને વળી કહે છે કે પ્રગટ છે, પ્રગટપણે છે, નિશ્ચયથી ચૈત્યને રૂપ છે. તો આ રીતે આ કળશ છે, અને એનો વિસ્તાર આપણે પૂજ્ય ગુરુદેવ પાસેથી આગળ લઈએ છીએ.
કળશ પ્રવચન ભાગ પહેલો પાના નંબર 425 ઉપર અહીંયા છેલ્લી લીટીથી ગુરુદેવ આગળ આપણને સમજાવે છે કે ત્રણ લોકમાં એવો કયો જીવ છે કે જેને બોધ અર્થાત જ્ઞાન શક્તિ સ્વરૂપના પ્રત્યક્ષ અનુભવશીલપણે આજ પણ પરિણમનશીલ ન થાય. ત્યાંથી શરૂ કરીને ગુરુદેવ આપણને આગળ સમજાવે છે. तो ये त्रिलोक में ऐसा कौन जीव है जिसको आत्मज्ञान, उसका स्वरूप की प्रत्यक्ष अनुभवशीलता निश्चय से आज भी नहीं हो. कांडी भाई ये मना क्यों तरी मैं पूछू तो पंडित जी क्यों ये शब्द रही गयो तमा एवं अर्थ गुजराती में रही गयो हिंदी में रही गयो हमने लिख्यो लिखी जाए. ये वहां वजन है. वजन समझे क्या कहते हैं? वजन है, कीमत है. हाँ प्रभु तेरी चीज तो ज्ञान स्वरूपी ज्ञान ना तेज नो पूर उसमें पुण्य पाप का अभाव. तो ऐसी बात सुनने से कौन प्राणी ऐसा है कि निश्चय से अपना आत्मा का अनुभव उसको प्रत्यक्ष अनुभवशील न हो. ये आत्मा का प्रत्यक्ष अनुभव होना उसका नाम संकीत है न उसका नाम धर्म है. समझ में आया? कैसा कौन जीवे? बहुत ऐसा होता है ना कि बहुत गुनाहन मारे उसका पति पत्नी को मारे तो मूंड जवाब ने बोले नहीं. नंदू नंदू नूर विनाना तेज विनाना मींढड़ी छो एम के आ બધું સાંભળેલું છે. સાંભળેલું છે એટલે સીધું સાંભળેલું મારતા વખતે સમજાણું કાંઈ ऊपर मारता था नीचे में था. मेंढड़ी कहीं बोलती नहीं कहीं कुछ पड़ती नहीं तेरे को. नन्नूर छो नन्नूर એટલે तेज कहीं नहीं तेरे में है न नूर नूर नाम तेज भी ना के चीज हो तेरी. एम भगवान आचार कोरड़ा मारते हैं. तू तेज बिना नहीं चीज हो आत्मा का तेज बिना कि तेरे को अनुभव तेरा न हो. ये दिगंबर संतो ની આવી વાણી છે. નાગા બાદશાહ થી આગા એને કઈ દુનિયાની પડી નથી. એ તો આત્માના આનંદના અનુભવ વિતરાગી દશામાં પીડ્યા છે. આ વિકલ્પ आया टीका बन गई है. तो ये कहते हैं कि टीका क्या करने वाला मैं नहीं. और विकल्प उठा ये भी मैं नहीं. और तेरे को भी ऐसे समझाया. अंदर आनंद घन प्रभु पड़ा है ने. चैतन्य का रस कंद आत्मा है ने ऐसा समझाया. और कौन त्रिलोक में ऐसा प्राणी है कि अपना अनुभव क्यों न कर सके? रसिकभाई આવી વાત છે અહીં તો. અને ये आत्मा का अनुभव बिना जितना करने में आवे कोई क्रिया कांड दया दान व्रत भक्ति तपस्या उपवास ये सब पुण्य संसार है. समझ में आया? बोध बोधम
स्वस्वरूप की प्रत्यक्ष अनुभवशील रूप, हा हा, स्वस्वरूप भगवान ज्ञानानंद प्रभु, उसका स्वस्वरूप, अपना स्वरूप, उसका प्रत्यक्ष अनुभव, ये आनंद ने ज्ञान का प्रत्यक्ष वेदन, जिसमें मन का न राग का भी संग नहीं, ऐसी असंग चीज प्रभु, ये असंग चीज का अनुभव, प्रत्यक्ष अनुभवशील अनुभव स्वभाव रूपता, हा हा हा। अरे आज भी नहीं प्रमाणशील हो गए, અત્યાર સુધી तो गया तेरा अनंत काल एम कहते हैं। अनंत काल गए बिना संकित, बिना या आत्मा की अंतर अनुभव बिना अनंत काल गई तेरी परिभ्रमण में 84 का अवतार, 84 लाख योनि में एक एक योनि में अनंत अवतार, ये सम्यक दर्शन बिना, એટલે आत्मा का अनुभवशील बिना, बाकी तो पंच महावर्त आदि अनंत बैठ लिया, पंच आया ने मुनि व्रत धार, अनंत बैर ग्रह को उपजायो, पर आत्म ज्ञान बिन ले सुख न पाए। 6 ढाला माता है, 6 ढाला पाठशाला में बनाते, पर अर्थ नहीं, खबर नहीं क्या। मुनिव्रत धात, मुनिव्रत कौन? नग्न दिगंबर, समझ में आया। और पंच महाव्रत लिया, नग्न पणे वन में रहने वाला पंच महाव्रत 6 मूल गुण लिया। मुनिव्रत धार अनंत बैर गृह को उपजायो, 9 में गृह के अनंत बैर गए, पर आत्म ज्ञान में ले सुख न पायो। ये पंच महावर्तना परिणाम पर राग ने दुख रूप है। उससे भिन्न आत्मज्ञान में आनंद है, तो आत्मा का स्वाद आया नहीं तेरे। ये पंच महावर्त पालने से भी आत्मा ज्ञान नहीं हुआ, समझ में आया। ऐसा मार्ग कठिन जगत में सत्य बात है क्या? अभव्य की बात है, तो अभव्य नहीं बात है, अभव्य हाँ भवजीवनी बात है। भवजी में ऐसा कौन होगा न समझे, हम कहते हैं। अभवी को समझते नहीं, यानी सी बात है ही नहीं। यहाँ तो भवी जीव जिसको सुनने में आया, समझाया, पूते आत्मज्ञान का अनुभव, कि किसको न हो, आज भी किसको न हो, हम कहते हैं। भूतकाल तो गई है, समझ में आया। आज भी अद्य नवतरी, अद्य अद्य ने अभी न क्या, आज भी, आज पण एम के એમાં આવી ગયો શપી એવું आज भी હવે नहीं है, ये होता है। हाँ तो आज भी नहीं परिणमनशील हो गए। ज्ञान स्वरूपी भगवान आत्मा पर्याय में ज्ञान का परिणमन, आनंद का परिणमन, शांति का परिणमन, ये स्वच्छता का परिणमन, उसका नाम धर्म न उसका नाम संकीट। ऐसी चीज क्यों न होवे, आज पण क्यों न होवे, एम कहते हैं। समझाई से कहा है। भावार्थ परिणमनशील है ना, स्वभाव, स्वभाव का परिणमन स्वभाव हो गया। जीवादि सदन प्रश्न थयो तो नहीं, दिल्ली विद्यानंद यारी, क्या क्या कहते कहते कि दूसरी बात है।
यहाँ तो ज्ञान, आत्मा ज्ञान स्वरूप, उसका ज्ञान रूपे पवित्रता पणे परिणमन होना, उसका नाम श्रद्धा है। ऐसा जीव की श्रद्धा, जीव की श्रद्धा, ऐसी श्रद्धा नहीं। हाँ, 155 का है पुण्य पाप चर्चा दिल में एम का जीवादि न माने समझी, ऐसा है नहीं। हाँ, जीव का अंदर शुद्ध चैतन्य स्वरूप है, ऐसी पर्याय में परिणमन होना, वितरागी दशा होना, ज्ञान का परिणमन होना। ज्ञान तो त्रिकाल स्वभाव है, पर उसकी पर्याय में अवस्था में पण आवा सांभળી नोय कया बेचारा શું કરે। એમને જિંદગી ચાલી જાય। આય તો આચાર્ય મહારાજ અમૃતચંદ્રાચાર્ય કુમકુમાચાર્ય નિગાથા છે મોટું, અમૃતચંદ્ર ટીકા ખાતા। હા, ઓહો, भावार्थ जीव कर्म का भिन्नपना अति प्रकट कर दिखाया। जीव એટલે भगवान आत्मा और कर्म એટલે राग आदि भाव, ये सब राग कर्म शरीर भिन्नपना अति ही प्रकट कर, अति ही प्रत्यक्ष थी प्रकट कर बताया। है उससे सुनने पर जिस जीव को ज्ञान उत्पन्न होता, जिस जीव को ज्ञान नहीं उत्पन्न होता, उसको बुलाना है सबको अपनी गुजराती भाषा में तुम्हारी बुलाना। उलंबा दिया, अरे प्रभु तुमको ऐसी बताया ने, तेरी चीज अंदर निर्मलानंद शुद्ध है, अस्थि है, और पुण्य पाप का भाव तो उसमें है नहीं, ऐसी चीज तेरो प्रकटपणे बताया। जिस प्रकार से भेद द्वारा समझाने पर, किस प्रकार से भेद द्वारा समझाने पर उसी भेद प्रकार को दिखलाते हैं। किस प्रकार से भेद द्वारा समझाने पर, इनके कई रीतें भेद द्वारा समझाया। आत्म एकतायाम परिचित तत्वे नई विभजन युक्त अत्यंत उच्छादितायाम। आत्मा चेतन द्रव्य, भगवान तो चेतन द्रव्यात्मा, जानन देखन स्वभाव स्वरूप भगवान आत्मा है। काय નો अर्थ देखो, कर्म पिंड का काय નો अर्थ કર્યો। एक को भगवान आत्मा चेतन द्रव्य और काय कर्म पिंड। ये पुण्य ने पाप ने राग ने द्वेष ने दया ने दान ना विकल्पो, ये બધા कर्म पिंड है, ये आत्म पिंड ज्ञान पिंड नहीं। समझ में आया? આવી વાત છે, આવો ઉપદેશ છે। તો કાંઈ ભાન ન મળે, સમ્યક તો નહીં પણ સમ્યક કેમ થાય એની ખબર ન મળે, અને ખાલી નીકળ્યા ત્યાગ કરીને, ધર્મનો ત્યાગ। બાપુ ચીજો વિતરાગ, जिनेश्वर कैसे चीज को अरूपी सुनने में आई नहीं तो समझे कहां से। आई तो कहते कि सुनने में बताया ना तेरे को, कैसे बताया कि चेतन द्रव्य ने कर्म काय એટલે कर्म पिंड है ना, शरीर कर्म पुण्य ने पाप शुभ शुभाव सब कर्म पिंड है। आई आत्मा चैतन पिंड है, चैतन पुंज है, ज्ञान का पुंज प्रभु आत्मा, राग द्वेष आदि बधा कर्म पिंड है। आई बात
પરમ સત્ય તો આ હે. હવે આ લોકો વ્યવહાર કરતે કરતે નીચે ઉતારે છે. હા હા, करो भाई व्यवहार, दया, दान, व्रत, भक्ति करते करते होगा. ये तो कहते विकार है, उसने करते आत्मा कैसे होगा? तो कर्म पिंड है. मोटी तकरार है ना અત્યારે. भगवान हम कहते हैं कि तो राग आदि तो पुण्य, दया, दान, व्रत, व्यवहार, रत्नोत्तर ये सब कर्म पिंड है. ये आत्मा उससे मिलता नहीं, तो आत्मा में है ही नहीं. ये तो निमित्त का कथन है. राते कहूं तो नहीं, ये निश्चय ने व्यवहार मोक्ष मार्ग ध्यान में प्राप्त होता है. राते कहा था वो द्रव्य संग्रह में 47 गाथा में आया है. द्रव्य संग्रह नेमीचंद सिद्धांत चक्रवर्ती मुनि दिगंबर बनाया द्रव्य संग्रह. उसमें 47 गाथा, 47 એટલે 40 ના 7, 47 कहते हैं. उसमें आया डूबी हम मुख એવું आया. 2 प्रकार का मोक्ष का मार्ग ध्यान में मिलते हैं. ऐसा पाठ है. वही गाथा अभी तत्वानुशासन में 33वीं निकली, कल बताया रात को. यहाँ है नहीं. तत्वानुशासन नागसेन मुनि हुआ है, दिगंबर संत, उसने तत्वानुशासन बताया. उसने 33वीं गाथा में ये है, राति बताया. उसमें दुर्यंपी मोक्ष यू 2 प्रकार का मोक्ष का मार्ग निश्चय ने व्यवहार ध्यान में मिलते हैं. कहते अर्थात स्व सन्मुख का ध्यान हुआ तो निश्चय हुआ, सम्यक दर्शन ज्ञान आदि निश्चय हुआ स्व के आश्रय से. અને ધ્યાનમાં जो राग बाकी रहा उसको व्यवहार मोक्ष मार्ग का आरोप कहकर व्यवहार कहा. पर ध्यान में मिलते हैं पहलो व्यवहार ने પછી नीचे सद का है नहीं. આગળ પાછળ ક્યાં? બે એક સાથે છે. મોડા કેમ ઢોકળા મોડા પણ ચિમનભાઈ મૂકવા નહીં આવતો હોય. समझाई से हाँ. यहाँ तो ऐसा लिया है द्रव्य संग्रह में और तत्वानुशासन में. અને શ્રીમદી આત્મસિદ્ધિમાં એટલે કહેતા ને નહીં નિશ્ચય એકાંત થી આમાં રહેલ નહીં રહેલ, એકાંતે વ્યવહારની બંને સાથ રહેલ. अर्थात आत्मा ज्ञान आनंद स्वरूप का अंतर अनुभव हो, ध्यान में अंतर ध्येय बनाकर अपनी वर्तमान दशा में चिदानंद भगवान पूर्ण को ध्येय बनाकर निश्चय दर्शन, निश्चय संकित दर्शन ज्ञान हुआ तो स्व के आश्रय से वो निश्चय, और उसमें ध्यान में पूर्ण ध्यान न हुआ तो राग बाकी रहा, उसको व्यवहार मोक्ष मार्ग का आरोप कहकर कहा है. तो बंध का ही कारण. तो व्यवहार से आरोप करके मोक्ष मार्ग का अपन ध्यान में मिला उसको बात है. समझ में आया? द्रव्य संग्रह में थी नहीं है? नहीं युक्ता चलो. दुव्यंपी मोक्ष એવું જાણે પાવ નહીં જમ મૂણી નિયમા એમ કે निश्चय थी भगवान आत्मा अपना आनंद स्वरूप का ध्यान करते अंदर में. जब ध्यान में जो निश्चय हुआ अनुभव ની प्रतीति अनुभवो એ વીરથીરતા વિતરાગતા वो तो निश्चय मोक्ष मार्ग. तमः प्रयत चित्ता जुयम झाणु समद शास्त्र 8.
जिससे मुनि नीम से ध्यान करके दोनों प्रकार के मोक्ष कारण को प्राप्त होता है। दोनों मोक्ष के कारण इस प्रकार निश्चय रत्न स्वरूप, निश्चय मोक्ष कारण, निश्चय मोक्ष मार्ग और इसी प्रकार व्यवहार रत्न व्यवहार मोक्ष हेतु व्यवहार मोक्ष मार्ग। इन दोनों के पहले साध्य भाव से निश्चय मोक्ष मार्ग साध्य और व्यवहार मोक्ष मार्ग साधन, पर मिलता है तो ध्यान में है એટલું નિમિત્ત है हमें आया निसंवेदन रूप परम ज्ञान के प्राप्त होता है। जो ध्यान विषय गुरु भगवान आत्मा की वर्तमान दशा में पूर्ण आनंद स्वरूप भगवान सच्चिदानंद प्रभु उसको ध्यान का विषय बनाकर अनुभव हो, उसका नाम सम्यक दर्शन है, सम्यक ज्ञान है। और साथ में राग बाकी रहते हैं, उसको व्यवहार कहते हैं। ये बंध का कारण है, पर आरोप करके व्यवहार कहने में कथन मात्र से कहना हो न व्यवहार। ये 33 गाथा में बोले में तत्वानुशासन। हाँ कहते हैं आत्मक का एकता परिचित तत्व। आत्मा भगवान चैतन्य द्रव्य जानक ज्ञान स्वभाव का नूर का तेज प्रभु और काया એટલે પુण्य ने पाप ने कर्म नो पिंड सभी काया है, कर्म पिंड है। एकतायाम एकत्वपने को एक पर्यंत को बताया। जीव कर्म अनादि बन पड़े एक पिंड है, उसको परिचित तत्व सर्वज्ञ परिचित नाम जेने બધા તત્વનું જેને સર્વજ્ઞપણું પ્રગટ્યું છે પરમેશ્વર સર્વજ્ઞ દેવ जिनेश्वर देव सर्वज्ञ प्रभु એમને પરિચિત તત્વ બધા તત્વોનું ત્રિકાળનું જ્ઞાન होता है। ये सर्वज्ञ ने भगवान ने एम कहूं, ऐसा कहा है। परिचित तत्व सर्वज्ञ ने प्रत्यक्ष जाना है। जिनेश्वर देव परमेश्वर वितराग प्रभु ज्ञानी परमात्मा अनंत महावीर परमात्मा आदि तो मोक्ष पधारे तो सीध में है, उसका तो वाणी है नहीं। समझ में आया? हाँ बताया हुआ क्यों नहीं तो अर्यंत बताना है। सर्वज्ञ परमेश्वर विराजते हैं महाविदेह में। सिमंदर भगवान तीर्थंकर देव विराजते हैं महाविदेह में। ये भगवान की वाणी है, उसको बताते हैं। सिद्ध को वाणी है नहीं, सिद्ध तो शरीर हो गया नमो सिद्धाणम, तो नमो हरिहंताणम ये शरीर है, वाणी भी है, पर अंदर में सर्वज्ञ पड़ा है। त्रण काल त्रण लोग को भगवान देखते हैं। ऐसा सर्वज्ञ परिचित तत्व जिन्हें तत्व का ज्ञान हुआ है। है सर्वज्ञ प्रत्यक्ष जाना है। क्या जीवादि समस्त द्रव्यों के गुण प्रयोगों जिन्होंने जीव जड़ छ द्रव्य उसकी गुण नाम शक्ति पर्याय नाम अवस्था जिन्होंने प्रत्यक्ष जाना है। सर्वज्ञ परमेश्वर जिनेश्वर अरिहंत देव જેણે ત્રણ કાળના દ્રવ્ય ગુણ પર્યાય, દ્રવ્ય એટલે વસ્તુ, ગુણ એટલે એની શક્તિ સ્વભાવ, પર્યાય એટલે અવસ્થા હાલત, ये द्रव्य गुण ने पर्याय सर्वज्ञ ने पृथक जाना है। त्रण काल त्रण लोग जाने जाना है परमेश्वर है।
ये सर्वज्ञ कहते हैं। देखो, ऐसे सर्वदेव के द्वारा द्रव्यार्थिक पर्यार्थिक पक्षपात के विभाग भेद निरूपण बिन स्वरूप वस्तु को साधना। द्रव्यार्थिक नहीं, द्रव्य से भगवान ऐसा है परिपूर्ण अखंड। पर्याय से वर्तमान अवस्था में राग आदि होता है, पर्याय एक अंश की अवस्था है, उसको पर्याय नहीं का विषय कहा। तो पर्याय नहीं का विषय छोड़कर त्रिकाली द्रव्य को बताना है। तो द्रव्यार्थिक और पर्यार्थिक रूप पक्षपात एनो विभाग भेद निरूपण बिन स्वरूप वस्तु को साधना अति निसंदेहपणे उच्छादितायाम। जिस प्रकार ढंग की निधि को प्रकट करते हैं उसी प्रकार जीव द्रव्य प्रकट ही है, वस्तु है ना भगवान। चिद घन आत्मा है कि नहीं है, तो उसका कोई स्वरूप है कि नहीं, तो उसका स्वरूप ज्ञान आनंद स्वच्छता वितरागता वो उसका स्वरूप है। अभी हो है ना, ढंग की निधि को प्रकट करता है। जैसे एक निधि होती है અને ढंग कैदी हो प्रकट कर जो भैया, उसी प्रकार जीव द्रव्य प्रकट ही है। भगवान तो वस्तु है नहीं, राग है ऐसा जीव द्रव्य भी है। राग है, दया दान आदि विकल्पित राग है, पुण्य तत्व है, प्रेम जीव द्रव्य भी है, एम कहते हैं। समझ में आया? जीव द्रव्य प्रकट ही है, एम कहते हैं। चैतन्य स्वभावी भगवान अंदर प्रकट सत्व तत्व विराजमान है। समझ में आया? परंतु कर्म संयोग से ढंका हुआ होने से પણ રાગ ને પુण्य ने पाप ने एवा विकारनी रुचि में भगवान अंदर प्रकट चैतन्य कंद आनंद स्वरूप है। पर वो पुण्य ने पाप जो कर्म का प्रत्यक्ष उपाधि उसकी रुचि में ये ढंक गया, ये मरण तुल हो गया है, जाने है ही नहीं। समझ में आया? क्या कहते हैं? कर्म संयोग से ढंका होने मरण को प्राप्त हो रहा है, हो रहा था अर्थात नहीं था। ऐसे कि पुण्य ने पाप का भावनी रुचि में आत्मा नहीं था। समझ में आया? ये शुभ भाव जो है एना प्रेमनी रुचि में आत्मा ढंग गया नाम आत्मा है ही नहीं, प्रकट है। पर राग की रुचि ने प्रेम में आत्मा नहीं है, ऐसा मरण तुल हो गया। આવી વાત दिगंबर संतोष सिवाय આવી વાત ક્યાંય છે નહીં, ક્યાંય है नहीं, ऐसी प्रत्यक्ष है। तो देखो प्रत्यक्ष ने ख्याल भाई सर्वज्ञ भगवान ने एम कहा ने कि वस्तु ही प्रकट चैतन्य घन है ने, पण उसको कर्म की उपाधि का भाव का प्रेम में मरण सा हो रहा है, मरण को प्राप्त हो रहा था। इसलिए कि चैतन्य घन नहीं है अने रागी में हूं, पुण्य में हूं, ऐसे कारण मरण तुल हो गया था। भाषा तो है। जीव द्रव्य प्रकट ही है, वस्तु तो वस्तु पदार्थ तत्व है कि नहीं,
और तत्व है तो उसका स्वभाव भी अविनाशी, तत्व जैसे आत्मा अविनाशी, तो ज्ञान दर्शन आनंद आदि स्वभाव भी अविनाशी है, प्रगट है, अस्थिपण है। छते कर्मना संयोगना प्रेमમાં ये मरण सा हो गया था। मरण को प्राप्त हो रहा था। जाने वो चैतन्य कोई चीज ज नहीं, बस आ दया दान व्रत भक्ति काम क्रोध परिणाम ये उसमें लग गया, चौंट गया। व्यवहार करो, व्यवहार करता करता व्यवहार में तो मरण तूल हो रहा था। વ્યવહારના રાગના પ્રેમમાં મરણતુલ हो रहा था। कितना स्पष्ट શ્રીમદ કહે છે, દિગંબરના તીવ્ર વચનોને લઈને રસ કંઈ સમજી શકાય છે। તીવ્ર વચનો શ્વેતાંબરની મોલાસને લઈ રસ ઠંડાતો ગયો। આવી વાત સંતો જાહેર કરે છે કે એ સર્વજ્ઞે કહેલું તે મેં કહ્યું છે। જેને ત્રણ કાળ ત્રણ લોક પ્રત્યક્ષ દેખ્યા ભગવાને, હરિહંત સર્વજ્ઞ જિનેશ્વર દેવ, એમણે એમ કહા कि तेरी चीज तो प्रगट वस्तु अंदर है, अस्थि है, पर कर्मना उपाधिना भाव में मरण सा हो रहा था। मरी गयो એટલે નથી જાણ્યા। वस्तु जो चैतन कन वस्तु है ये कहीं है ही नहीं जाने। राग दया दान व्रतना भावना प्रेम में एनी आज में वो चीज ज नहीं है जानी। उससे समझ में आया। कर्म मरण सा हो रहा था, मरण को प्राप्त हो रहा था, इतने जाने नहीं है। मूल चीज है अस्थि तिकाली, ये ज अस्थि है। पर्याय ने रागनी अस्थि है तो ये क्षणिक है, ये क्षणिक अवस्था ना रुचि ना प्रेम में भगवान तिकाली मरण सब प्राप्त हो रहा था। આવી વાત ભગવાનની છે, સાંભળી છે ક્યાંય છે? સંતો દિગંબર મુનિઓ કહે છે કે આ તત્વને તો સર્વજ્ઞ જોયું છે ને બધું, કે તારું તત્વ અંદર ચૈતન વસ્તુ હે, વસ્તુ હે વસ્તુ, આખી ચૈતન કન એ કર્મના નિમિત્તના ઉપાધિના પ્રેમમાં અથવા કર્મની ઉપાધિ રાગાદિના અસ્તિત્વમાં એનું અસ્તિત્વ સ્વીકાર્યું। આનું મરણ થવું કે આ નથી જાણ્યા। રાગના પ્રેમમાં રાગની રુચિમાં આ વસ્તુ જાણી નથી। व्यवहार 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 व्यवहार, पर व्यवहार नीचे बिना व्यवहार होता ही नहीं है। व्यवहार तो आंधळा है, देखने जागे जो एकदम प्यारे राग हो उसको व्यवहार कहते हैं। हाँ तो इकेला रागना प्रेम में कर्मनी उपाधिना संयोग में चैतन भगवान ढंका था, मरण सा हो रहा था। है भाषा थी श्लोक थे ना, श्लोक कर्म संयोग से ढंका हुआ होने से मरण को प्राप्त हो रहा था। सो यह भ्रांति परम गुरु तीर्थंकर देव के उपदेश सुनने पर मिटती है। क्या कहते हैं कि परम गुरु तीर्थंकर सर्वज्ञ परमेश्वर
उससे वो आत्मा ने राग क्या है भिन्न बताने वाला तो वही है। उसके सुनने पर भिन्न जानने में आता है और भ्रांति मिटती है। हाँ हाँ हाँ, ये दया दान व्रत तप आदि का भाव करते करते अंदर होगा आत्मा। ये आत्मा को એને मरण चोट प्राप्त करा दिया। ये भ्रांति वितरागना वचन सर्वज्ञना वचन में ऐसा आया है, एम कहते हैं कि राग से भिन्न चीज है, राग से तेरी चीज प्राप्त नहीं होगी। तीर्थंकर ना वचन है। ये कर्म संयोग से मरण की प्राप्त हो रहा तो उसका वाणी भगवान की ऐसी आई कि संयोगी भाव से तेरे आत्मा प्राप्त नहीं होगा। तेरा स्वभाव भाव से प्राप्त होगा। समझ में आया? अधिकरण में कहा है वो इंद्रिय से आत्मा जानने में नहीं आता, इंद्रिय से आत्मा जानते ही नहीं। इंद्रिय प्रत्यक्ष का भगवान आत्मा विषय नहीं और पर दूसरा अनुमान से उसको जान सके ऐसी चीज नहीं, और अपना आत्मा भी दूसरा को अनुमान से जाने ऐसा है नहीं। ત્યારે कहा छठा बोले अपना स्वभाव से जानने में आता है ऐसा प्रत्यक्ष ज्ञाता आत्मा है। ये प्रवचन सार भगवान की दिव्य ध्वनि, उसका सार प्रवचन सार भगवान कुंकुंडाचार्य बनाया। प्रवचन सार है जो वो बाजू यहाँ समय सार है, कुंकुंडाचार्य आगे समय सार और प्रवचन सार। प्रवचन नहीं थी दिव्य ध्वनि का सार भगवान की वाणी में ये आया। तीर्थंकर ना उपदेश सुनने पर मिटती है, तो उपदेश कैसा है उसका अर्थ है ना कि राग ने व्यवहार से तेरी चीज भिन्न है, ऐसा तीर्थंकर का उपदेश है। समझ में आया? यह भ्रांति परम गुरु श्री तीर्थंकर देव उपदेश सुनने पर मिटती, क्योंकि भगवान का उपदेश ये है कि कर्म उपाधि का भाव से तेरी चीज नहीं, तेरी चीज तो उपाधि से रहित है। तो राग का रुचि छोड़कर स्वभाव की दृष्टि करे तो तेरे प्रतीत होगा, तो तेरे प्रत्यक्ष अनुभव होगा। वितराग की वाणी है। ये वाणी राग से लाभ मनावे वितराग की वाणी नहीं हम कहते हैं, क्योंकि आप भ्रांति परमेश्वर की वाणी से तो वाणी में आया। राग आदि उत्पन्न होता है, ये उपाधि है, जड़ की दशा है, चैतन्य की वो नहीं। उससे भिन्न चैतन्य पर प्रभु प्रकट पड़ा है, तो वितराग स्वभाव है, ऐसा वितराग भाव से प्रकट होता है, राग से प्रकट होता नहीं। समझ में आया? एक કલાકની વાત રહી બધી। अरे धर्म बापू जिनेश्वर देव का धर्म इतनी कौन चीज है दुनिया में, क्या है नहीं। सर्वज्ञ परमेश्वर जिनेश्वर देवे जी देखा अने उसने कहा क्या उसे एम आया ने कि उपदेश देव सुनने पर मिटती है, तो उपदेश में क्या आया कि राग आदि जो व्यवहार है ये उपाधि कर्म की है, उसमें तेरा आत्मा नहीं, उससे तेरे आत्मा जानने में
आता ही नहीं। हाँ हाँ हाँ, ऐसा तो उपदेश आया त्यारे भ्रांति थोड़ी रागनी समझ में आया। हाँ हाँ, दया दान व्रत भक्ति पूजा करने से तेरे कल्याण होगा, आत्मा भान में आया, ऐसा तो उपदेश है नहीं। भगवान एम कहते हैं ये उपाधि से रहित अंदर पड़ा है आत्मा, उसको अंदर में जान तो अंदर प्राप्ति होगी। वितराग भाव से आत्मा को जान तो प्राप्ति होगी, राग से जानने से आत्मा की प्राप्ति होगी नहीं। समझ में आया? अरे आएगी। उपाधि से निरुपाधि तो ख्याल में आवे तो उपाधि है। हाँ हाँ, बहुत फरी गई અત્યારે પરુપણા ફરી ગઈ है। वितराग परमात्मा त्रिलोकनाथ है ना, उपदेश से आप भ्रांति मिट जाती है हम कहते हैं। समझे? तो उपदेश में वो आया कि राग आदि सब कर्म पिंड है, तुम्हारा चैतन्य आनंद पिंड ज्ञान पिंड है। हाँ हाँ हाँ, तो राग का लक्ष्य छोड़कर त्रिकाल आनंद का लक्ष्य करने से तेरी पर्याय में वितरागता उत्पन्न होगी, उससे भ्रांति का नाश होगा। समझ में आया? राग में हूं, वो राग से लाभ होगा, ऐसी भ्रांति। हाँ हाँ, ये उपाधि से भिन्न भगवान, उसका अनुभव कर, एम सर्वज्ञ परमेश्वर ने कहा, तो उससे अनुभव से भ्रांति का नाश होगा। ओहो, आत्मा तो चैतन्य प्रकाश पूर्ण है, उसमें तो राग है नहीं। राग है नहीं तो राग से लाभ होगा ऐसा है नहीं। हाँ हाँ, આવી વાત સાંભળવી મુશ્કેલ પડે, કઠણ પડે। लगा आया तो व्यवहार में तो सब लोप होता जाता है। भगवान ऐसा कहा है कि व्यवहार सब उपाधि है, उससे भिन्न तेरी चीज है। अब तो तेरी चीज तेरा स्वभाव से प्राप्त होगी, राग से प्राप्त होगी नहीं, ऐसा तो भगवान का उपदेश है। हाँ 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 हाँ, ये कर्म संयोग से भिन्न शुद्ध जीव स्वरूप का अनुभव होता है। देखो, भगवान की वाणी सुनने से भ्रांति मिटती है, और कर्म संयोग से भिन्न राग से भिन्न शुद्ध जीव स्वरूप का अनुभव होता है। ऐसा अनुभव संकित है, એને सम्यक दर्शन कहते हैं भगवान। आई तो इन्हें खबर ही नहीं संकित की, तो देवगुरु शास्त्र की श्रद्धा करो, नव तत्व की भेदती श्रद्धा करो, संकित ऐसा है ही नहीं। वितराग ऐसा कहा नहीं। कर्म संयोग से भिन्न शुद्ध जीव स्वरूप का अनुभव होता है, ऐसा अनुभव संकित है। और कैसा है, बहुत विशेष किया। આજનો સ્વાધ્યાય અહીંયા સુધી રાખીએ છીએ। 28મા કળશનો શેષ ભાગ આપણે આવતા સ્વાધ્યાયમાં લઈશું।